چند منٹ بعد وہ انتہائی پرتپاک انداز میں ہم چاروں کو الوداع کہہ کر رخصت ہو گیا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی مصروفیات کی بنا پر ہماری روانگی کے وقت ایئرپورٹ پر نہیں آ سکے گا۔ میں نے بھی اس بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے امید تھی کہ ہماری پاکستان سے روانگی میں کوئی رکاوٹ پیش آئی تو اول خان ہماری مدد کے لیے وہاں موجود ہوگا۔ ایک بار اپنے وطن کی سرزمین چھوڑ دینے کے بعد ہمیں درپیش فوری خطرات میں نمایاں کمی آ سکتی تھی۔ مبارک ہو، ایک قدرے طویل اور بوجھل سکوت کے بعد ویرا مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، اب ہم چاروں پاکستانی سیکرٹ ایجنٹ بن گئے ہیں۔ احمقانہ باتیں مت کرو، میں نے قدرے ترش لہجے میں کہا۔ تم ننھی سی بچی نہیں ہو، ان کھیلوں کو خوب اچھی طرح جانتی ہو۔ ہم امن و عافیت کی راہ سے اچانک تلوار کی تیز دھار پر آ گئے ہیں۔ تلوار اپنی جگہ سے ہل جائے یا ہم سے کوئی لغزش ہو تو ان صورتوں میں نتیجہ ایک ہی نکلے گا، ہم بے موت مارے جائیں گے۔ یہ ایسا خطرناک معاملہ ہے تو تمہیں جلال کی پیشکش قبول کرنے سے صاف انکار کر دینا چاہیے تھا۔ وہ میرے لہجے کی ترشی کی پرواہ کیے بغیر بولی، وہ تمہارا گہرا دوست ہے، تم پر زبردستی کوئی ذمہ داری نہیں تھوپے گا۔ اس نے اپنی دانش میں ہمارے ساتھ بہت بڑی بھلائی کی ہے۔ میں اسے اس فیصلے کے منفی پہلوؤں پر بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو پھر تمہیں اس فیصلے میں کیڑے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس نے برجستہ سوال کر ڈالا۔ تم اس وقت الجھی ہوئی باتیں کر رہے ہو، ڈینی کی باتوں میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اول خان نے مضبوط لہجے میں میرا ساتھ دیا۔ ایسے کاموں میں عارضی عملے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ کرائے کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جب تک حالات سازگار رہتے ہیں سب انہیں اپنے سر کا تاج بنائے رہتے ہیں، ان پر کوئی برا وقت آتا ہے تو ان سے فیض اٹھانے والے بھی ان سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ وہ دشمن کے چنگل میں بے یارو مددگار رہ جاتے ہیں، انہیں اپنی لڑائی خود لڑنا پڑتی ہے۔ اول خان میرے ذرا سے اشارے پر بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہی ایک بات میرے ذہن میں چپ رہی تھی۔ ان دنوں میں نے اخبارات میں ایک بھارتی مسلمان کا دردناک حوالہ پڑھا تھا جو 12 برس پہلے اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے پاکستان جانے کا خواہش مند تھا۔ شاہجہاں کے کسی سورما نے اس سے پہلے سے طاقا ہوا تھا۔ کافی پھیروں کے بعد جب وہ آخرکار اپنا ویزا حاصل کر کے پاکستانی سفارت خانے سے لوٹ رہا تھا تو راستے میں راہ کے آدمی نے اسے گھیر لیا۔ وہ شخص غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ راہ والے نے اسے بھاری زاد راہ کے ساتھ آنے والے دنوں کے سہانے سپنے دکھائے تو وہ اس ترغیب کو نظر انداز نہیں کر سکا، آسانی کے ساتھ اس کے جال میں پھنس گیا۔ 2 ہفتوں کی ہنگامی تربیت اور بریفنگ کے بعد اسے پاکستان روانگی کی اجازت مل گئی۔ وہاں وہ چشمہ نیوکلیئر پاور پروجیکٹ کے قریب مشتبہ حالت میں گھومتا ہوا پکڑا گیا۔ اس کے کیمرے میں کئی حساس مقامات کی تصاویر موجود تھیں۔ وہ پاکستانی حکام کے عطاب کا نشانہ بن گیا۔ اپنی زندگی کے اس بدترین دور میں اسے راہ والوں کی طرف سے مدد کی امید تھی، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا اور غیر ملکی تخریب کار ثابت ہو چکا تھا۔ تفتیش اور مقدمے کے دوران وہ کئی برس تک مختلف پاکستانی جیلوں میں سڑتا رہا، پھر اسے لمبی مدت کی قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ باہر سے کسی نے پلٹ کر اس کی خبر لی، نہ اس کے مقدمے کی پیروی میں کوئی مدد فراہم کی گئی۔ وہ 12 برس بعد رہا ہو کر بیماری اور کمزوری کی حالت میں اپنے وطن واپس پہنچا تو راہ والوں نے سرے سے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ مہینوں ادھر ادھر دھکے کھانے کے بعد اسے پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دینے کی کوشش کی تو پولیس والوں نے لاتیں مار کر اسے بھگا دیا۔ وہ راہ والوں سے اس رقم کا طلبگار تھا جو اسے پاکستان سے واپسی پر غیر مشروط طور پر دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے محض اپنے وطن کی خاطر اپنی جوانی کے 12 برس دشمن کی جیلوں میں گزارے تھے، تو اسے باقی ماندہ زندگی نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے وہ رقم طلب کرنے کا پورا اخلاقی اور قانونی حق حاصل تھا۔ نئی دہلی کے ایک مشہور وکیل نے اس بد نصیب کی کتھا سن کر اس کی طرف سے عدالت میں راہ کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا تھا، جسے سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا تھا۔ ویسے شاید کسی کو کانوں کان بھی اس شخص کی روداد ابتلا کا علم نہ ہوتا، لیکن عدالت میں مقدمے کی سماعت کی منظوری ملتے ہی اس کی کہانی نے اخباری حلقوں کی توجہ حاصل کر لی، اور یوں وہ خبر میری نظروں میں بھی آ گئی جو ریاستی مہم جوئی کے خوفناک حقائق کو بے نقاب کرتی تھی۔ کہنے کو کچھ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن میری نگاہ حقائق پر مرکوز تھی۔ ہمارے لیے حالات سازگار نہیں رہے تھے۔ دشمن نے ہمارے ہاتھوں پے در پے اتنی مار کھائی تھی کہ اس وقت اپنی پوری توجہ ہماری سرکوبی پر مرکوز کر دی تھی۔ ان لوگوں کے دماغوں میں بچا طور پر یہ خیال جاگزین ہو چکا تھا کہ بعض بار رسوخ اور سرکردہ سرکاری اہلکار ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں۔ وہ چوہوں کی طرح بلوں میں چھپے ہوئے اپنے حریفوں کو ڈھونڈ نکالنے کے دعوے دار تھے۔ یہ اور بات تھی کہ میرے اور ویرا کے بارے میں وہ ایک مدت سے ناکامیوں کی خاک چاٹ رہے تھے۔ حد یہ تھی کہ مقامی حالات کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے کراچی کی پوری انتظامیہ کی سرگرمیوں کی انفرادی مانیٹرنگ شروع کی ہوئی تھی۔ وہ ان افراد اور قوتوں کا کوئی لگانا چاہتے تھے جو زبانی طور پر ہمارے بدترین دشمن بنے ہوئے تھے اور ہمیں ہر قیمت پر پکڑنے کے لیے کوشاں تھے، لیکن عملی طور پر ہمارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ وہ کوئی بے سر و پا افواہ نہیں، ایک مصدقہ خبر تھی۔
इन लोगों की पुरस्कार सरगर्मियों के बिना पर अव्वल खान जैसा जानिसार दोस्त भी हमारी भी मकसद तलाश में अपने आदमियों को शहर भर में इधर से उधर उड़ाने पर मजबूर हो गया था। इन हालात में हम शहर बल्कि मुल्क से कूच करने वाले थे। हमारी कोई चीज असली नहीं थी। नामों और शनाख्त नामों से लेकर वीजा तक हर चीज जाली थी। एक मर्तबा हम अपने वतन की मिट्टी छोड़कर दूर निकल जाते तो यकीनी तौर पर बेअमान हो जाते। जब तक तकदीर हमारा साथ देती हम आगे बढ़ते रहते। कहीं भी कोई रुकावट पेश आने की सूरत में अपनी खाल बचाने की जिम्मेदारी हमारी अपनी होती। पाकिस्तान से कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता था। वो एक तल्ख तरीन हकीकत थी जिसका पूरी तरह इदराक किए बगैर मुल्क से बाहर कदम निकालना हमाकत के सिवा कुछ न होता। मुल्क और कौम के दुश्मनों से महाज आराई के लिए किसी ने हमें मजबूर नहीं किया था। पाकिस्तान के करोड़ों शहरी इन सियासी, फौजी, मुआशी और मुआशरती दुश्मनों से बेनियाज होकर लगे बंदे अंदाज में अपनी जिंदगी बसर करते हैं। सर झुकाकर अपनी रोजी और रोजगार के मसाइल हल करने में लगे रहते हैं और फिर फुर्सत के औकात अपने अहले खाना के साथ हंसती खुशी गुजारते हैं। इन्हें किसी सोबराज की फिक्र होती है न टॉम, डक और हैरी की। चाहता तो मैं भी करोड़ों की इस भीड़ में शामिल होकर सुख चैन की जिंदगी बसर कर सकता था, लेकिन मैंने मुल्क में हेरोइन की फैलती हुई वबा के खतरे को भांप कर जिमी लॉयड और उसकी शी के खिलाफ बगावत करके अपनी मर्जी से इस पुरखतर राह का इंतखाब किया था। मुझे जलाल अव्वल खान या किसी और ने इन मार्का आराइयों में नहीं धकेला था। करोड़ों इंसानों के सुकून के लिए मुल्क भर में हजारों या शायद लाखों इंसान दिन रात खतरात से खेलकर अपने वतन की मिट्टी की हिफाजत कर रहे थे। मुझे ये कभी जोम नहीं रहा था कि मेरे रास्तों का अकलौता राह ही था। बहुत से लोग हदूदों कयूद में रहकर भी बड़े बड़े काम कर रहे थे। मुझे ये फख्र जरूर था कि मैं भी इनका हम सफर था और इसी मिशन की तकमील के लिए हमें बैरून मुल्क का सफर दरपेश था। इस मरहले पर मुल्क से बाहर का सफर खतरनाक जरूर था, लेकिन मायूस कुन नहीं कहा जा सकता था। जिमी लॉयड से शुरू होने वाली लड़ाई की बना हेरोइन बनी थी, जो कुर्बो जवार के सरहदी इलाकों से सस्ते दामों लाकर इससे भी सस्ते दामों पर मुल्क भर में फैलाई जा रही थी और कई सौ गुना मुनाफा पर बाहर भी स्मगल की जा रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ये बुनियाद वसी तर होती चली गई। मनफी मकासद के लिए काम करने वाले दुश्मनों के चेहरे मुख्तलिफ थे, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं हेरोइन एक कदर मुश्तरक जरूर थी। मैं इस बात को कभी फरामोश नहीं कर सकता था कि अफीम की काश्त वाले पाकिस्तानी और अफगान इलाकों में एक जर्मनी केमिस्ट ने हेरोइन बनाने का नुस्खा फैलाया और फिर पैदावार पर जिमी लॉयड ने कब्जा जमा लिया। जिमी लॉयड वो शख्स था जो वाशिंगटन के व्हाइट हाउस की पुख्ता रविश पर अपनी कार के करीब किसी बेआवाज राइफल की गोली का निशाना बना था। एक मुस्तनद हेरोइन फरोश का अमरीकी ऐवान सदर में मारा जाना किसी वजाहत का मोहताज नहीं था। दूसरे सिरे पर सोबराज नजर आ रहा था, जो खुद भी दर पर्दा हेरोइन की भारी स्मगलिंग में मुलविस था। तुम किस सोच में डूब गए? मुझे खामोश पाकर वीरा ने टोका। मेरा जहन माजी में भटक गया था। मैंने खफीफ से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, क्या भारत का सफर याद आ गया? उसने छुपते हुए लहजे में पूछा। डाल्टन, डॉक्टर P.J. डाल्टन याद आ गया था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। ओह, वीरा ने हल्का सा बेसाख्ता कहका लगाया। तुम तो बहुत पीछे चले गए। अब ये ना कह देना कि इस खित्ते में हेरोइन को मैंने मुतारफ कराया है। मुझे खुशी है कि मेरे कहने से पहले तुमने ये बात कह डाली। इसी को ज़मीर कहते हैं। इंसान जुबान से जो चाहे कहता रहे, अंदर की आवाज रह रह कर उसे कचोके लगाती रहती है। मैंने ये बात मजाक में कही थी, तुम बिला वजह संजीदा हो रहे हो। वीरा के तेवर बदल गए। तुम दोनों ने अचानक क्या किस्सा शुरू कर दिया? अव्वल खान ने उलझे हुए अंदाज में कहा। दिलचस्प कहानी है, सुल्तान शाह ने लुकमा दिया। इस इलाके में अफीम सदियों से पैदा होती है, लेकिन इसको हेरोइन नामी अल्कलाइड बनाने की सादा सी टेक्नोलॉजी डॉक्टर डाल्टन ने सबसे पहले मोमन खान को फरोख्त की थी। यह ज्यादा पुराना वाकया नहीं है। मैंने अव्वल खान को बताकर तायद तलब नजरों से वीरा की तरफ देखा। आज तुमने मेरे सामने पहली बार यह जिक्र छेड़ा है तो अपनी मालूमात की तस्हीह भी कर लो। वीरा ने धीमे और कदरे शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। मोमन खान इस वक्त अफीम की सबसे बड़ी फसल का मालिक था। डाल्टन कोशी ने 1 लाख जर्मन मार्क दिए थे। मोमन खान बीच का आदमी था। डाल्टन उसे तरीका सिखा कर वापस चला गया। हम मोमन खान से उसकी फसल का सौदा अफीम के दाम पर तय करते थे। वो खामोशी से इसकी हेरोइन बनाकर हमें दे देता था। मोमन खान की लेबॉर्ट्री से बात बाहर निकलने के बाद सूरत-ए-हाल बदल गई। लोग अफीम की बजाय हेरोइन के सौदे करने लगे। शायद तुम लोग हेरोइन की तारीख में उलझ गए हो, अव्वल खान ने बराह रास्त मुझसे मुखातिब होकर कहा। इस वक्त इस तज़किरे की क्या तुक है? सुबह तुम चारों की रवानगी है। इस सफर के ख्याल से पुरानी यादें खुद ब खुद यकजा हो रही हैं। मैंने धीमे से कहा। वो मेरे सफर की इब्तिदा थी और अब तक मैं कमोबेश वही लड़ाई लड़ रहा हूँ। अव्वल खान हंस दिया। तुम भी धूर की कोड़ी लाते हो। अब सोबराज और छोटा राजन हेरोइन के बड़े व्यापारी हैं और तुम्हारे दुश्मन हैं। यानी कि जहन में फ्लैशबैक हो रहे हैं।
वीरा ने हंसते हुए सरसरी अंदाज में कहा। शायद इसका सबब वही दोनों हैं जिनके नाम तुमने लिए हैं। किस्सा यह था कि हेरोइन कोई नई इजाद नहीं थी। यूरोप में इसे बनाने का नुस्खा मौजूद था, लेकिन इसके मौजर असरात की वजह से इसे अदवायात की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया था। शी ने मेरे जरिए 1,00,000 जर्मन मार्क के एवज डॉक्टर डाल्टन की खिदमात खरीदी थी ताकि वो तुम्हारे कबायली इलाके के सबसे बड़े जमींदार और उसके आदमियों को अफीम से हेरोइन बनाना सिखा सके। डाल्टन ने यह गुर मोमन खान के आदमियों को सिखा दिया और अफगानिस्तान पर रूसी योरिश के दिनों में इस खित्ते में पहली बार हेरोइन बनना शुरू हो गई। यूं समझ लो कि तकरीबन 7 किलो अफीम से सिर्फ 1 किलो हेरोइन तैयार होती है। नकलो हमल के वजन में जबरदस्त कमी होती है और 1 किलो हेरोइन के दाम आलमी मंडी में 7 किलो क्या बल्कि 10 किलो अफीम से भी कई गुना ज्यादा होते हैं। शी ने मुख्तसर सी मुद्दत में मोमन खान की मदद से करोड़ों डॉलर कमा लिए। हमारे खित्ते के लिए हेरोइन का नशा चंद बरस पहले तक कोई वजूद नहीं रखता था। अव्वल खान ने गहरा सांस लेकर तफक्कुर अमीर लहजे में जवाब दिया। अगर डाल्टन ने रकम के लालच में यह बीज यहाँ बोया था तो तारीख उसे कभी मुआफ नहीं करेगी। अच्छा हुआ कि यह राज भी आज खुलकर सामने आ गया। मुझे हमेशा से हैरत थी कि मुजरिमों ने खिसारे की सरमायाकारी कैसे की। अब पता चला कि वो मोमन खान को अंधेरे में रखकर हेरोइन कोड़ियों के मोल खरीद रहे थे। यह भी याद रखने वाली बात है कि शी का बानी जिमी लाइट था, जिसे वीरा अपना बाप कहती है। सुल्तान शाह ने उसकी बात पूरी होते ही लुकमा दिया और शी के वहां पर वीरा ने डाल्टन को घेर कर जर्मनी से हमारे सरहदी पहाड़ों में पहुंचाया था। अव्वल खान के होठों पर हल्की सी बेजान मुस्कुराहट तैर की। मेरे याद रखने या भूल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले वक्तों में सारी कड़ियां खुद ब खुद सामने आती चली जाएंगी। तारीख के बेरहम धारे को मोड़ा नहीं जा सकता। आज इतने वर्षों के बाद तुम्हें ये भूली बिसरी बातें कैसे याद आ गईं? वीरा ने मुझसे खिफत अमीर लहजे में पूछा। अभी कुछ देर पहले तुम अव्वल खान के ऐसे ही सवाल का जवाब दे चुकी हो, मैंने मानी खेज अंदाज में कहा। ऐसे दूर रसा कायक पर जब तक खुलकर तबादला ख्याल ना हो उलझने सताती रहती हैं, फ्लैशबैक होते रहते हैं। हम मुद्दत से एक साथ रह रहे हैं, तुम किसी भी वक्त बात करके अपनी उलझने दूर कर सकते थे। वीरा नरमी से कहा। बस तुम्हारी दिल आजारी के ख्याल से खामोश रहा तो क्या मुझे नादम करने के लिए किस्सा निकाला है? देखो तुमने बहकना शुरू कर दिया। मैंने उसे वहीं टोक दिया। इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद भी मैं वहीं खड़ा हुआ हूं, सिर्फ नाम और चेहरे बदले हैं। धंधा वही पुराना है। बस ये ख्याल मुझे दूर तक बहा कर ले गया। वीरा चंद सानियों तक खामोश रही, फिर हल्के से इस्तिजाइया अंदाज में बोली। मेरे बारे में तुमको दूसरे जराए से बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी। मुझे भी तुम्हारे बारे में बाला ही बाला बहुत कुछ मालूम होता रहा। हम एक दूसरे की दुश्मनी को भूल कर अब दोस्ती की राह पर गामजन हैं, लेकिन हमने कभी आमने सामने बैठकर इन बातों को साफ नहीं किया जो एक दूसरे के खिलाफ हमारे जहन में जड़ें पकड़ी हुई हैं। मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजाहत या सफाई की जरूरत हो। अभी तुमने डाल्टन का जिक्र छेड़ा था, वीरा ने तंज से कहा। वो कोई वहम नहीं था, मैंने एक ठोस हकीकत का जिक्र किया था। तुम इसे तस्लीम कर रही हो? हकायक और शकूक और शुबहात में बहुत फर्क होता है। क्या मैं ये समझ लूं कि तुम्हें मेरे किसी कौल फेल या नीयत पर किसी किस्म का कोई शक या शुबा है? वीरा ने जोर देकर मुझसे तायीद तलब की। चाहो तो मैं ये बातें लिख कर दे सकता हूँ। एक दूसरे पर भरपूर एतमाद किए बगैर हम ज्यादा देर तक एक साथ नहीं रह सकते थे। वेरी गुड, वीरा खुश होकर अपने दीदे घुमाते हुए बोली। यह मेरे लिए एक एजाज है। तुम सब गवाह रहना कि आज डैनी ने मुझे जुबानी सर्टिफिकेट दे दिया है। ये कोई नई बात नहीं है, गजाला विला तवक्कुफ बोली। हम सब अमली तौर पर तुम पर अपने पूरे एतमाद का मुजाहरा करते रहे। यानी तुमको तो बाज ऐसे राजों में शरीक कर लेते हैं जिनके बारे में मुझे बहुत देर से इल्म होता है। मेरे लिए कोई खास बात नहीं है। वीरा अपने शाने झटक कर बेपरवाही से बोली। किस्सा दरअसल ये है कि तुम अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देने के बाद खालिस खानादार खातून बन गई हो। अमली कार्रवाइयों से आमतौर पर दूर रहती हो। कभी कभी जोश आता है तो कुछ कर गुजरती हो, वरना तुम्हारी जात पर फिर वही जमूद तारी हो जाता है। ये गजाला ने अचानक उसकी बात काटते हुए कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वीरन जल्दी से वजाहत की। हम में से किसी न किसी को घर संभालना ही चाहिए। एक सुगड़ बीवी की हैसियत से तुमने ये जिम्मेदारी रजाकाराना तौर पर अपने सर ली हुई है। ये बहुत अच्छी और काबिल तारीफ बात है। जरा सी तनकीद का जवाब ये है कि डैनी को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त नफरी की जरूरत रहती है। इस मामले में तुम पीछे रहती हो। मैं हर जगह अपनी टांग नहीं अड़ाती। जहां मेरी जरूरत होती है मैं कभी वहां पीछे नहीं हटती। मुतअद्दिद वाकयात की तुम गवाह हो। गजाला ने बेबाकी से जवाब दिया। हाँ, वीरा पुरख्याल अंदाज में अपना सर हिलाते हुए बोली। तुम्हारी ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है। दरअसल मैं ये कहना चाह रही थी कि डैनी मुझे एतमाद में लेकर मुझ पर कोई एहसान नहीं करता। मशवरे और मुआवनत के लिए मुझे बहुत कुछ बताना इसकी मजबूरी बन जाता है और मैंने इसे कभी मायूस नहीं किया। हठधर्मी एक खौफनाक बीमारी है। सुल्तान शाह ने अव्वल खान से मुखातिब होकर गहरी संजीदगी से कहा।
ये किसी को लाहक हो जाए तो इसे अपने गिरदोपेश में अपनी जात के सिवा कोई नजर नहीं आता। कोई होता भी है तो वो इसे बोना लगता है। अव्वल खान को क्या बता रहे हो? मेरी तरफ देखकर बात करो ना, वीरा बोली। मैं खास तौर पर तुम्हारी बात नहीं कर रहा। अव्वल खान को अपने तजर्बे की बात बता रहा था। मैंने आमतौर पर यही सब देखा है। तुम जो चाहो कहते रहो, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं भी अव्वल खान को यही बता रहा था। हर धर्म पर किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी आंकने में मगन रहता है, सुल्तान शाह बोला। इससे दरमियान में दखल अंदाज होकर गजाला और वीरा की बहस का रुख अचानक मोड़ दिया था। दुनिया को कोई माकूल आदमी बेसरोपा बातों पर ध्यान नहीं देता। कदर तुरुश लहजे में सुल्तान शाह को जवाब देकर वीरा मेरी तरफ मुतवज्जा हो गई। जलाल का दिया हुआ लिफाफा कब तक मेज पर पड़ा रहेगा? ओह, तो तुम्हारी नजर इन ट्रेवल्स चेक्स पर है। सुल्तान शाह ने फिर अपनी टांग अड़ाई। वीरा ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। इसकी निगाहें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चाहो तो तुम पूरा लिफाफा ले सकती हो। मैंने सारी रकम ले ली तो मैं उम्र भर तुम तीनों में से एक शख्स के जले कटे ताने सुनती रहूंगी। उसने कहा, बेहतर यही है कि जलाल के मशवरे के मुताबिक इसके हिस्से बखरे कर दो। किसी के पेट में मरोड़ नहीं होगी। उसने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसका वाज़ेह इशारा सुल्तान शाह की तरफ था। उसने बुरा सा मुंह बनाया और अपनी जगह पर कसमसा कर रह गया। मैं लिफाफा उठाया और उसमें से 10-10 हज़ार डॉलर के ट्रैवल से चेक गिनकर वीरा और सुल्तान शाह के हवाले कर दिए। वीरा ने इस गड्डी को गिने बगैर मोड़ कर चूमा और फखरिया लहजा में बोली, मैं जब से पाकिस्तान में हूं तुम लोगों के माल पर ऐश कर रही हूं। यह यहाँ मेरी पहली कमाई है जो मुझे मेरे हक के तौर पर मिली है। शहर की कच्ची आबादियों में भी अभी कमाने वालियों की मांग है। तुम चाहो तो वहां दिल खोल कर कमा सकती हो। सुल्तान शाह ने संजीदगी से मशवरा दिया। वीरा बहुत उर्दू दां बनती थी, लेकिन इस वक्त सुल्तान शाह से मात खा गई। उसके बुशरे से जाहिर हो रहा था कि कमाने वाली बात इसके सर पर से गुजर गई थी। शायद वो अपनी खिफत छुपाने के लिए इसे गोल ही कर देती, मगर गजाला और अव्वल खान के होठों पर उभरने वाली खफीफ सी मुस्कुराहट ने उसे तजब्जुब में डाल दिया। तुम किन कमाने वालियों की बात कर रहे हो? उसने घुर्रा कर सुल्तान शाह से पूछा। अभी रहने तो अमेरिका पहुंचकर बता दूंगा, सुल्तान शाह ने फतेहमंदाना अंदाज में जवाब दिया। बेफिक्र रहो, यह कोई बुरा हवाला नहीं है। ये बातें सारी रात चलती रहेंगी। अव्वल खान ने मौका की नजाकत भांपते हुए कहा, हो सके तो कुछ शिकम पूरी के बाद आराम कर लिया जाए। बातों में किसी को खाने का ख्याल ही नहीं रहा था। इस दौरान में दीन मोहम्मद हम लोगों की जानिब से किसी हदायत के इंतजार में आसपास मंडला रहा था। अव्वल खान के बुलंद आहंग लहजे में शिकम पूरी का जिक्र सुनते ही वो ड्राइंग रूम में आ गया। वीरा डठाई से अपनी जगह पर जमी रही। गजाला उठकर उसके साथ किचन की तरफ बोली। खाने और आराम के दौरान में सोबराज का कोई जिक्र नहीं है। गजाला के चले जाने के बाद वीरा ने अव्वल खान से कहा। अव्वल खान की मुस्तफसराना निगाहें मेरी तरफ उठ गईं। मेरा इरादा है कि 2 बजे के बाद उसको देखा जाए। मैंने कहा, तो क्या सफर से पहले सोने का इरादा नहीं है? वीरा ने हैरत से पूछा। तुम चाहो तो इसी वक्त सो सकती हो, मुझे नहीं आएगी। थोड़ी देर के लिए कमर सीधी करने के बाद मैं सुकून के साथ इससे बात करूंगा। क्या 2 बजे के बारे में तुम्हें किसी ज्योतिषी ने हदायत दी है? वीरा ने चुपते हुए लहजे में मुझसे सवाल किया।